Hello everyone. Are you excited today? You can type in your chat box if you're not muted. Yes. Definitely excited. Great, great, great. So we'll start our today's session. Let me just share my screen. So I am very excited to start this session, webinar because this is my first webinar. I have taken multiple seminars offline, but this is in fact a first webinar for me. I am very much excited to share with you all. So our today's topic is how to file an appeal before GST Appellate Tribunal. So this is we are presenting through My GST Hub channel. I'll inform you about this thing, what is My GST Hub and how it works at a later stage. So who will benefit from this session? किसके लिए ये session बना हुआ है? So first of all, it is for tax professional and tax consultant like us, chartered accountants, company secretaries, lawyers, advocates, cost accountants, etc. Second comes the legal practitioners. Third comes the finance and tax managers who are responsible for managing and mitigating GST disputes in their organization. And lastly, it is for aspiring professionals who want to build a foundation in specializing the career in indirect tax litigation domain. So what is the agenda of this session? Agenda first point we will cover what is GST Appellate Tribunal, its context, its objective, and overall legal framework of that Appellate Tribunal. Secondly, we will see who is eligible for GST Appellate Tribunal appeal filing and what are the pre-filing requirements. Thirdly, we will see what is the appeal filing processes step by steps, right, starting from analyzing the order of first authority to filing the application online. Then we will see what is the structure of GST Appellate Tribunal, what are the powers vested with Appellate Tribunal, and what is the hearing procedure, personal hearing procedure. And lastly, we will see what is the best practice a professional as a chartered accountant, lawyer, company secretary, or a cost accountant can do before filing an appeal to GST tribunal, and what are the common mistakes which the taxpayers can avoid while filing the appeal. It's my big promise to you that once we complete this webinar, you will gain a lot of knowledge about GST Appellate Tribunal because this is something new which has come into the regime. अभी तक किसी को पता नहीं है and ये start भी नहीं हुआ है, operate भी नहीं हुआ है. As you are all aware, GST Appellate Tribunal will be accepting all the appeals till 30th June 2026. तो अभी सिर्फ अपील एक्सेप्ट हो रहा है, अभी उसका हियरिंग स्टार्ट हुआ नहीं है. So I promise you that you will gain good knowledge about GST Appellate Tribunal. If you permit, I would like to summarize my journey of last 11 years to you in 3 to 4 minutes, sir. So I started my CA practice in 2009. आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सीए कोर्स क्यों ज्वाइन किया था? इफ यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स इट वुड बी रियली हेल्पफुल. आपने सीए क्यों ज्वाइन किया था? Serve to clients happily, to earn more and grow professionally. Great, great. Any more reasons? Great, great. कुछ तो करना था. सही है सुरेंद्र भाई. कुछ तो करना ही है ऐसे. परफेक्ट. मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने की जर्नी स्टार्ट क्यों की थी. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट था स्टार्टिंग से. मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं किसी को अप्रोच नहीं कर पाता था. मैं हमेशा बस मेरी मम्मी, माय वर्ल्ड वाज माय मम्मी डैडी, माय ब्रदर, और बस जो फैमिली रिलेटिव्स हैं बस उतने. मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करता था. तो मुझे किसी ने उस टाइम पे कहा कि भाई सीए साहब है ना, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको सिर्फ अपने असाइनमेंट करने हैं, अपने केबिन में बैठ के अपना काम करना है एंड दे हैव टू गो टू होम.
उनको किसी से मिलना नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करना है, दे डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद एनी अदर पर्सन। ये रीजन था, ऑनेस्टली स्पीकिंग यही रीजन था आई ज्वाइन माई सीए कोर्स। और कोई रीजन नहीं था कि भाई सीए कुछ अलग काम करता है, सीए का लेवल अलग है भाई, उसका रुतबा अलग है, वो सब मुझे पता ही नहीं था। दिस इज द ओनली रीजन बिकॉज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, इधर यू चूज सीए, सीए, सीएमए, और आप एमबीए करने चला जाते हो। तो मैंने बोला भाई एमबीए तो करना ही नहीं है, क्योंकि कहाँ जाके प्रेजेंटेशन देते रहेंगे रोज। तो वो मैंने फिर इसलिए चूज नहीं किया था। सो दिस वॉज अ स्टोरी। आई चूज सीए इन 2008। आई एंटर माई फाउंडेशन, आई क्लियर माई फाउंडेशन। सीए इंटर में तो भाई, सीए इंटर में सेकेंड ग्रुप ने तो वाट लगा दी थी। बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जा रहे थे, हो ही नहीं रहा था। मेरा फाइनल एग्जामिनेशन करीब आ गया था, बट फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस आई क्लियर्ड माई इंटर सीए। देन फाइनल सीए में आया, आई क्लियर्ड माई बोथ द ग्रुप्स of CA final examination in November 2015 attempt. Thereafter, I joined one of the renowned CA firm in Mumbai. It is known for its GST practice in Mumbai and all over India. तो वहां पर आई वर्क फॉर 7 years. I gained very much experience about GST because since it was a GST niche practice firm, तो वहां पर I got the exposure of service tax before GST. Then when GST came in picture, we have implemented GST across various industry, with that too of market leader of that industry. तो अगर मैं नाम लूँ तो काफी बड़े बड़े नाम है, आप सब उसको जानते हो बिकॉज इट्स ऑल लिस्टेड कंपनी. So I got experience for that company as well. And since this company was huge, it was a complex transaction to resolve what is GST, how GST will be applicable to them, what are the measures, precautions to be taken through them. So in that 7 years, I got very good experience about how to manage the clients, how to manage their workflows about GST, and what are the points in which we can avoid mistakes or notices which can come from GST department. Thereafter, I started my own practice in January 2023. जनवरी 23 से प्रैक्टिस की स्टार्ट किया है, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग इन जीएसटी नीश फर्म. इट्स अ प्रोप्राइटरी फर्म नाउ, और जीएसटी प्रैक्टिस ही हम लोग कर रहे हैं. If you can see the logo at the right bottom side, it says mygstup.com. So, what is MyGST Hub? MyGST Hub is a community which we have formed in 2020. लॉकडाउन के टाइम पे फॉर्म किया था, बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था. बट सिंस आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस इन जनवरी 23, इसको अभी एक्टिव कर दिया है. सो माई जीएसटी हब इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम P2P बिजनेस भी करते हैं और P2C बिजनेस भी करते हैं. तो इट्स अ वेबसाइट, इट्स अ यूट्यूब चैनल, इट इज अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो व्हाट इज इट्स रोल, ये कैसे करता है? सो इट एक्वायर्स वर्क ऑनलाइन फ्रॉम इट्स वेबसाइट और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, और ऑनलाइन जो वर्क लेते हैं. सो वी हैव एसोसिएट्स पैन इंडिया बेसिस. तो हम जीएसटी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, इट इज ऑन पैन इंडिया बेसिस. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग आरओसी सर्विसेज अक्रॉस पैन इंडिया. तो जीएसटी अब क्या करता है कि ऑनलाइन काम उठाता है. अब we have a team, we have associates with them. So what we do is we tie up with all the associates, we sign an agreement with them, and we then distribute the work to each and every associate depending upon the state or city in which they are located. This is one model of working of MyGST Hub. Second model is that if anyone faces any issue in with respect to GST, ROC filing, direct taxes, so we collaborate with them और उनके साथ मिलके हम काम करते हैं. सो दिस इज व्हाट माई जीएसटी हब इज. इट इज ग्रोइंग. I will say that in next 2-3 years or 4 years, it will become a giant in its market, because आपने अभी नाम सुना होगा टैक्समैन का, टैक्स स्कैन का नाम सुना है, और देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स हु आर ऑफरिंग दिस सर्विसेज. बट बिलीव मी, इन द नेक्स्ट 5 years we will develop this platform as a reliable source for professional as well as the business owners. Now we'll come back to our webinar, sir. So the objective of this session is, first we will understand what is GST Appellate Tribunal provisions. Then we will see what are the master filing processes, step by step guidance for filing an appeal. Then we will develop the strategy कि भाई हाँ ठीक है, अब अपील करना है तो किस तरीके से करना है. What should be the practical approach to file an appeal. Then we will see what are the mistakes which can be avoided by the taxpayer as well as the professionals
what are the checklists a professional should maintain before filing an appeal. So these are all the objectives of the session. Now, I want to ask you what is why GST litigation is increasing. So there are multiple reasons to it. Coming to first reason is large tax demands. Since department are issuing orders blindfoldedly, आंख बंद करके order pass कर रहे हैं, and it results in significant demand due to outward supply as well as input tax credit, which results in substantial financial stakes for taxpayer. टैक्स पेयर का पैसा अटक जाता है बहुत ज्यादा. अगर टैक्स पेयर अपील करने का भी सोच रहा है तो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 10% ऑफ प्री डिपॉजिट इन कमिश्नर अपील फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी. तो वो एक 10% भी बड़ा चंक हो जाता है. सेकेंड मेन रीजन इज इंटरप्रिटेशन इशू. एज यू आर अवेयर जीएसटी में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 2017, but still it is not refined, it is not stable. Every time there is some issue updates, everything is going on. So taxpayer updates, taxpayer interpret the law as per them. टैक्स प्रोफेशनल अपनी तरीके से करते हैं और जीएसटी ऑफिसर्स अपनी तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं. सो देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. दैट्स व्हाई जीएसटी लिटिगेशन इज इंक्रीजिंग. थर्ड मेन रीजन इज ऑडिट ड्रिवन केसेस. मैं ना हमेशा ये बोलता था कि पहले जब जीएसटी इरा आया था उससे पहले क्या था कि बिजनेसेस वर वे अहेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. बट जब से जीएसटी इरा स्टार्ट हो गया है, सो डिपार्टमेंट इज फार मोर अहेड देन बिजनेसेस. आप उनके सॉफ्टवेयर देखेंगे, दे आर ट्रैकिंग ईच एंड एवरी डिटेल वेरी माइन्यूटली. अभी तो इफ यू एग्री विथ मी, जितने भी आप चेक करेंगे नोटिस आ रहे हैं, ऑल आर एआई ड्रिवन. तो उनके सिस्टम्स एआई से इतने लिंक हो चुके हैं कि वो आपके माइन्यूट डिटेल कहाँ कहाँ से पकड़ के लेके आ रहे हैं. दे आर इशूइंग अ सुपर्ब नोटिसेस. इन सम केस दे आर इशूइंग वेरी बैड नोटिस, क्योंकि कभी क्या होता है जो लॉजिक सेट होता है एआई में वो गलत लॉजिक सेट हो जाता है, तो वहां पर कुछ बेकार नोटिस भी आ जाते हैं. सो दैट्स वाई ड्यू टू द यूज ऑफ एआई देर इज ए ऑटो ड्रिवन केसेस जिसके थ्रू जीएसटी ऑडिट्स हो रहे हैं. देर आर इन्वेस्टिगेशन, देर आर सर्च सीजर्स as well as special drives run by each and every department in individual states. जैसे अभी रिसेंटली हमने इनकम टैक्स का देखा कि दे आर कमिंग आफ्टर रेस्टोरेंट ओनर्स. तो वैसे जीएसटी डिपार्टमेंट भी उस पर वर्क कर रहा है. सो दिस आर द मेन 3 reasons व्हाई जीएसटी लिटिगेशन इज इंक्रीजिंग. नाउ विल सी व्हाट इज जीएसटी लिटिगेशन हायरार्की. सबसे पहले कम्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होता है. तो अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है ड्यू टू जीएसटी रिटर्न स्क्रूटिनी, जैसे एएसएमटी 10 आ गया है या डीआरसी 01 आ गया है या डीआरसी 01 आ गया है, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू इशू सच नोटिसेस. तो वो आपको नोटिस इशू करता है, यू रिप्लाई टू दैट नोटिसेस, एंड इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही विल पास अ इनिशियल ऑर्डर एंड क्लोज द असेसमेंट प्रोसीडिंग. अब ऑर्डर तो पास हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया. अब आपको लगता है कि यार ऑर्डर जो पास किया है वो करेक्ट नहीं है, इट इज अगेंस्ट अस एंड वी शुड बी गेटिंग रिलीफ. सो यू हैव एन ऑप्शन टू फाइल एन अपील बिफोर फर्स्ट अपील इन अपेलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107 और सीजीएसटी एक्ट. तो ये फर्स्ट अपील है, इसको कॉमनली भी नॉर्मली हम कमिश्नर अपील के नाम से भी जानते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट अपील. अगर फर्स्ट अपील फाइल हो, आपने फर्स्ट अपील फाइल कर दिया, यू कैन डिस्कस द केस ओवर देयर. देन कम्स द रिवीजन. अब जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फर्स्ट अपील, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, बट उसमें डिपार्टमेंट ये देखता है कि ऑर्डर जो पास हुआ है वो करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज है. तो वो उनके पास अथॉरिटी है, वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं. सो दिस पावर इज गिवन अंडर सेक्शन 108 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. तो ये रिविजन कर सकता है. सो वी आर अवेयर ऑफ फर्स्ट अपील, वी आर अवेयर ऑफ जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, बट ये रिविजनल अथॉरिटी का लोगों को पता नहीं है. बट दिस इज ऑल्सो पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. देन कम्स द जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसका हम वेबिनार कर रहे हैं. इफ अ टैक्स पेयर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप अगर एग्रीव्ड हो with first appeal authority order or revisional authority order, then you can file an appeal in GST appellate tribunal. Okay, here the important thing to be noted is if your case lies under fact finding authority
कि आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर इशू नहीं है, आपका जो भी पॉइंट्स है वो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी के ऊपर है, देन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल इज योर फाइनल अथॉरिटी. यू कैन नॉट go beyond GST appellate tribunal. Lastly comes the High Court and the Supreme Court. So as I just informed you, if your case comes under question of law कि भाई interpretation issue है, कुछ question of law है इसके अंदर, then you can definitely go in High Court or Supreme Court against the order of GST Appellate Tribunal by filing writ petition or special leave petition. So this was the GST litigation hierarchy. Now we will jump on the legal framework for GST appellate appeals. फर्स्ट कम सेक्शन 112. जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल को पावर दिया हुआ है सेक्शन 112 के अंदर. सेक्शन 112 टेल्स यू और गिव्स द राइट टू यू एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू फाइल एन अपील टू ट्राइब्यूनल. तो ये 112 सेक्शन के अंदर दिया हुआ है. देन कम्स रूल 110 ऑफ सीजीएसटी रूल्स. तो 110 रूल के अंदर बताया कि आप अपील किस तरीके से फाइल कर सकते हैं. सो आई वांट टू मेक अ स्मॉल कंपैरिजन ओवर हियर. व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज एक्ट एंड व्हाट इज रूल. तो एक्ट है ना हमेशा ये बोलता है कि क्या करना है, और रूल हमेशा ये बताता है कि कैसे करना है. तो आप कभी भी नॉट ओनली जीएसटी, आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे ना, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि एक्ट हमेशा बोलेगा क्या करना है, एंड रूल विल टेल यू, गाइड you how to do it. So this is the difference between act and rules. Next, coming to GST notifications and circular, these are additional guidance or amendment made by the GST department in the law, and uh, it is active from the date it is notified. It can be retrospectively or prospectively. तो ये notification का ये काम है. देन वी विल डिस्कस व्हेन कैन अपील बी फाइल. अपील कब फाइल कर सकते हैं. फर्स्ट, जब आपको फर्स्ट अपील अथॉरिटी से नेगेटिव ऑर्डर आया है तो आप अपील फाइल कर सकते हो. सेकंड, अगर कोई डिपार्टमेंट ने ऑर्डर आपका रिविजन कर दिया, रिविजनल अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया है, तो आप अपील कर सकते हो. थर्ड, अगर आपके फेवर में कोई अपील ऑर्डर आ गया था फर्स्ट अपील से और रिविजनल अथॉरिटी से, तो डिपार्टमेंट हैज द पावर, हैज द राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट यू इन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही अपील फाइल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल एन अपील अगेंस्ट यू. नाउ वी विल सी हु कैन फाइल द अपील. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर है ना, हम लोग सोचते हैं कि भाई जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ना वही फाइल कर सकता है. सो फर्स्ट कम्स द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. अब अगर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई नोटिस ऑर्डर इशू हो गया है and he is aggrieved with that order, he can definitely file an appeal in GST Appellate Tribunal under section 112. Second comes the unregistered person. This is very interesting. अगर वो unregistered person है तो फिर वो अपील कैसे फाइल करेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो जीएसटी लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है. बट दैट कम्स द केस. आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. मैं अनरजिस्टर्ड था. मुझे, और मैं इन्वॉइसेस इशू कर रहा हूँ टू डिफरेंट माय सप्लायर, टू डिफरेंट क्लाइंट्स विद अ टैक्स इनवॉइस, एंड आई एम चार्जिंग जीएसटी ऑन इट. तो इफ डिपार्टमेंट्स कम्स टू नो दैट कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ जीएसटी में, बट फिर भी मैं टैक्स इनवॉइस दे रहा हूँ एंड आई एम कलेक्टिंग जीएसटी, दे कैन इशू अ notice against me and pass an order against me demanding the penalty and the tax amount collected from me. So even though I am registered, I can file an appeal in GST appellate tribunal. So this is a unique concept. Third comes the department officer appeal. तो जैसे टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकता है, वैसे जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर भी अपील फाइल कर सकता है. सो देर आर 3 पर्सन हु कैन फाइल द अपील इन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ फाइलिंग एन अपील. सो फॉर अ टैक्स पेयर, गवर्नमेंट ने बोला है भाई तो आप है ना 3 महीने के अंदर ही अपील फाइल कर सकते हो. आपका जब ऑर्डर आता है, आपको वो ऑर्डर कम्युनिकेट होता है ना, उसके 3 महीने के अंदर ही यू कैन फाइल एन अपील. अदरवाइज योर अपील विल बी टाइम बार्ड. Here, there is one important catch. It says that 3 months from the date of communication of the order to file an appeal before GST Appellate Tribunal. तो सर्विस टैक्स में क्या होता था कि सपोज आपका ऑर्डर पास हुआ है 31 मई को, ओके, और वो आपको कम्युनिकेट बाय पोस्ट आया, आपको सपोज लेट से 15 जून को आपको वो ऑर्डर आया. सो इन दैट केस हमें वो 15 डेज का बफर टाइम मिल जाता था कि 15 डेज के बाद
हम बोल सकते हैं कि हमें ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है 15 जून को, सो वी विल कैलकुलेट दिस 3 मंथ्स टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ 15 जून एंड नॉट 31 मई। बट कमिंग टू जीएसटी, आपको जीएसटी ऑर्डर कहाँ पर आता है? आपके जीएसटी पोर्टल पे कम्युनिकेट हो जाता है। सो एज सून एज द ऑर्डर इज अपलोडेड ऑन जीएसटी पोर्टल, इट इज सेड दैट दिस ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर थ्रू जीएसटी पोर्टल। तो जिस दिन वो अपलोड हो गया है, वो डेट से 3 मंथ्स आपको काउंट करना है। Here, an important catch is, tell your clients, tell your team to regularly check on the GST portal for any departmental communication, whether it is a show cause notice, it is a return scrutiny notice, और any personal hearing notice। तो एक हैबिट बना लो कि वीक में एक बार तो चेक करना ही है। सेकेंड कम्स द डिपार्टमेंटल अपील। अगर डिपार्टमेंट को फाइल करना है, सो दे हैव गिवन अ टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ्स। हमें 3 महीना दिया है, उनको 6 मंथ दिया है। तो यहाँ पर भेदभाव है सीधा सीधा, कि डिपार्टमेंट को उन लोग ज्यादा फेवर करते हैं और उन लोग ये सोचते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफिसर ज्यादा काम करते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। वी वर्क मोर देन देम, बट उनको टाइम लिमिट दिया हुआ है ज्यादा। दे कैन फाइल अपील विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। Then, of course, there is condonation of delay available. If you show sufficient cause that due to some XYZ reason, this appeal filing was delayed from your side, the tribunal has a discretionary power to accept your condonation and accept your appeal। प्लीज कंसिडर जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए दिया है। सो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करना है। अगर आपने डिले कर दिया तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का ही कंडोनेशन ट्राइब्यूनल आपको दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं नहीं दे सकता। सो दिस इज ओवरऑल 6 मंथ्स applicable to a taxpayer if he shows there is sufficient cause for delay in filing an appeal। नेक्स्ट कम्स द मॉनेटरी लिमिट फॉर ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल में कुछ मॉनेटरी लिमिट रखा है कि भाई कुछ अमाउंट बेसिस रहेगा, उसके ऊपर ही आपका डिमांड रहेगा, देन ओनली यू कैन फाइल एन अपील। अदरवाइज क्या होगा, कमिश्नर अपील्स में जैसे आपने देखा कि कुछ भी नॉमिनल था, 100 रुपीज 1000 रुपी का भी केस था, पीपल है फाइल अपील बिकॉज वहां पर कुछ रिक्वायरमेंट मॉनेटरी लिमिट नहीं था। तो यर दे हैव केप्ट अ मॉनेटरी लिमिट which says that if the tax amount disputed is more than 50,000 rupees only, then only appeal can be admitted in GST tribunal. Otherwise, you cannot file an appeal in GST tribunal। Department has got discretionary powers in which it can refers to actual facts of and circumstances of the case, और वो आपका अपील एडमिट कर सकता है। बट इट दिस डिस्क्रिशनरी पावर इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट 50,000 लिमिट। 50,000 के ऊपर ही होगा तो ही कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। प्री डिपॉजिट सबने सुना है बिकॉज जीएसटी में, इनकम टैक्स में हम लोग सब करते आ रहे हैं। सो व्हाट इज प्री डिपॉजिट? सो प्री डिपॉजिट इज द टैक्स अमाउंट, पार्ट ऑफ द टैक्स अमाउंट विच अ टैक्स पेयर हैज टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट बिफोर फाइलिंग एन अपील। So there are two things need to be considered in it. First is entire admitted amount। अगर आपका 1 CR का लाइबिलिटी था, 1 CR का डिमांड था, एंड यू थिंक दैट उसमें से 20 लाख रुपीज का जो डिमांड है वो प्रॉपर है, मतलब वो मुझे पे करना चाहिए। सो एज पर दिस सेक्शन 112, जो जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल का अपील फाइलिंग सेक्शन है, इट सेज दैट यू शुड पे 100% ऑफ एडमिटेड अमाउंट। Second comes the disputed amount। So in our example, 1 CR was the total demand, 20 lakh was the admitted amount. So balance 80 lakh was the disputed amount on which I will be fighting in the GST appellate tribunal। So law says that additional 10% of the disputed amount needs to be paid as a pre-deposit in the while filing an appeal in tribunal। अब यह कम्स अ क्वेश्चन, कितने लोग पूछ सकते हैं कि भाई कमिश्नर अपील्स में जब हमने फर्स्ट अपील में अपील फाइल की थी, हमने ऑलरेडी 10% डिपॉजिट पे कर दिया था, देन इज इट नेसेसरी टू पे नाउ? तो यस, the wordings given in the law is that additional 10% of disputed amounts needs to be paid uh, as a pre-deposit while filing an appeal in GST appellate tribunal। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल। 1 CR का डिमांड था, देन वी हैव पेड 10% ऑफ 1 CR इन माई फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी अपील्स। तो वहां पर 10 लाख रुपीज मैंने पे कर दिया था एज अ प्री डिपॉजिट। जब
फर्स्ट अपील ने मैटर कंक्लूड किया, ऑर्डर पास किया, तो उसने मेरा डिमांड 1 CR से रिड्यूस करके 70 लाख रुपीज कर दिया, 30 लाख का मुझे रिलीफ दे दिया था। एंड आई एम स्टिल एग्रीव दैट जो 70 लाख का ऑर्डर आया है डिमांड का, वो भी नहीं आना चाहिए था। तो 70 लाख इज माई डिस्प्यूटेड अमाउंट। तो जब मैं जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करूंगा, लॉ सेज दैट जो एडिशनल डिस्प्यूटेड अमाउंट है आपका, उसका एडिशनल 10% आपको प्री डिपॉजिट पे करना है। सो इन दिस केस आई विल पे 70 लाख का 10%, दैट इज 7 लाख रुपीज एज अ प्री डिपॉजिट while filing an appeal in GST appellate tribunal. अब here the total pre-deposit comes to 17 lakh rupees. If you notice, first appeal में we have paid 10 lakh rupees and in the tribunal we are paying 7 lakh rupees. So it comes to 17 lakh rupees. Here one question can rise कि भाई मेरा फाइनल डिमांड इज 70 लाख रुपीज, तो अगर मैं उसका 20% भी देखता हूं तो इट कम्स टू 14 लाख रुपीज। देन वाई एम आई पेइंग 17 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 14? तो यहाँ पर जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, लॉ में लिखा है एडिशनल 10% पे करना है। तो जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उसको भूल जाओ, वो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। अभी जो एडिशनल डिस्प्यूटेड डिमांड है उसका 10% पे करना है। दैट्स वाई द प्री डिपॉजिट कम्स टू 17 लाख रुपीज इन टोटल। नेक्स्ट, द प्रीवियस डिपॉजिट क्रेडिट, जो मैं हमने अभी डिस्कस किया, द फर्स्ट अपील में आपने किया है, वो एज इट इज रहेगा, उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। Now we will see what are the important forms for filing. What are the important forms required to be filed in GST Appellate Tribunal? First comes the GST form, GST APL 05. This is the most essential form needs to be submitted while filing an appeal. अगर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो आपका अपील एडमिट ही नहीं होगा, आपका अपील फाइल ही नहीं होगा। सो दिस इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर्म, GST APL 05. Who files this form? Registered taxpayer who is aggrieved by the order of previous authority. तो वो अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन GST APL 05 में फिल करेगा। Second comes the form GST APL 06. So APL 06 is a cross objection form. क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है, वी विल डिस्कस इन इन कमिंग स्लाइड्स, तो हम वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कम्स दी फॉर्म GST APL 07. अब जैसे टैक्स पेयर कैन फाइल एन अपील, तो वैसे डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है। तो वैसे ही APL 05 और APL 07 में एक ही डिफरेंस है। APL 05 में टैक्स पेयर फाइल कर सकता है, APL 07 में डिपार्टमेंट फाइल कर सकता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन APL 05 एंड APL 07. Next, we will move to the steps which needs to be considered before filing an appeal to GST Appellate Tribunal, और वो भी डिसाइड करने के लिए कि अपील फाइल करना है या नहीं करना है। उसके लिए ये सारी स्टेप्स है टू बिफोर फाइलिंग एन अपील। फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज द ऑर्डर। First, you will thoroughly study the findings of the order which is passed by your subordinate authority. उसने जो ऑर्डर पास किया है वो डिटेल में आप स्टडी करोगे कि भाई उसका फाइंडिंग क्या था, उसका रीजनिंग क्या था वो फाइंडिंग के ऊपर, और फाइनली उसने क्या कंक्लूजन दिया था उसके ऊपर। सो यू विल केयरफुली स्टडी द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रीवियस एपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। देन आपने ऑर्डर स्टडी कर लिया, नाउ यू विल आइडेंटिफाई द एरर्स। अब एरर्स आर ऑफ फ्यू टाइप्स। सबसे पहले आप लीगल एरर्स फाइंड करोगे कि भाई उसने जो कोड किया है, जो सेक्शंस कोड किए हैं, क्या वो करेक्ट है या कुछ गैप्स हैं, या उसने कोई केस लॉ कोड कर दिया है, उसका लीगल प्रेसिडेंट करेक्ट है या नहीं है। सेकेंड, यू विल सर्च फॉर फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज कि भाई उसने जो फैक्ट डाला है वो करेक्ट है क्या नहीं है। एंड लास्टली आप प्रोसीजरल लैप्सेस चेक करोगे कि जो ऑर्डर इशू करना था, टाइम लिमिट था, वो करेक्ट टाइम पे हुआ है क्या नहीं। सो आप सबसे पहले ऑर्डर स्टडी करोगे, इश्यूज फाइंड करोगे, एरर्स आइडेंटिफाई करोगे, देन फिर आप स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करोगे। ओके, स्ट्रैटेजी डिटरमाइन किस तरीके से करोगे? आपने अब ऑर्डर एरर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या एरर्स है आपके ऑर्डर में, अब आप स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करोगे। लेट्स से आपके ऑर्डर में लीगल में इश्यूज भी है, फैक्चुअल इश्यूज भी है, एंड प्रोसीजरल एब्सेस भी है। तो यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट, एज अ लीगल टैक्स प्रोफेशनल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड कि ऑन विच मैटर यू नीड टू फाइल एन अपील। अब यहाँ पर अपने केस में तीनों इश्यूज हैं।
सो एज अ टैक्स प्रोफेशनल आई विल हार्प ऑन द लीगल मिस इंटरप्रिटेशन। मैं डायरेक्ट वो ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन करूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द नंबर्स और पार्ट। बिकॉज अगर वो ऑर्डर ही वैलिड नहीं है देन आई डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट द नंबर्स और फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज मेड इन द ऑर्डर, और जो अमाउंट का कैलकुलेशन है वो गलत है। तो मैं डायरेक्ट लीगल के ऊपर फाइट करूंगा। सो एज अ टैक्स प्रोफेशनल ऑल्सो यू शुड डिटरमाइन योर स्ट्रैटेजी कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे आपको फाइट करना है। देन कम्स स्टेप टू, चेक लिमिटेशन पीरियड। सबसे पहले आप लिमिटेशन पीरियड चेक कीजिए कि आपका अपील करने का टाइम लिमिट बचा हुआ है या वो क्रॉस हो गया है, टाइम बार हो गया है। सो एज वी डिस्कस फॉर अ टैक्स पेयर इट्स 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो आप चेक करो वो टाइम लिमिट है या नहीं है। आपने चेक किया टाइम लिमिट बचा हुआ है, प्रिपेयर अ नोट फॉर कम्युनिकेशन। आप प्रूफ ऑब्टेन करो कि भाई कब ऑर्डर आया था, क्या डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए थे, एंड फॉर्मली वो कब कम्युनिकेट हुआ है। अब जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स या अपेलेट अथॉरिटी के कुछ कुछ ऑर्डर्स है ना फिजिकल फॉर्म में आए हैं। आप अभी चेक करोगे कि कितने ऑर्डर्स पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। सो यू शुड कीप अ नोट ऑफ दैट कि आपको वो बाय पोस्टल कब रिसीव हुआ है। कीप अ एनवलप ऑफ इट, कि आप वो मेंटेन करो एज अ लीगल प्रूफ कि भाई ये ऑर्डर भले ही 31 मई की डेट का है बट ये हमें कम्युनिकेट हुआ है 30 जून को। सो यू विल गेट अ 1 month बफर फॉर फाइलिंग एन अपील इन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। ये सर्विस टैक्स में जो लोग प्रैक्टिस करते थे उनको बहुत अच्छे से पता है, वो एनवेलप हमेशा संभाल के रखते थे। तो आप ये एक नोट रखिए, आपको ये प्रूफ रखना है कि कब वो ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हुआ है। थर्डली, वंस द ऑर्डर इज रिसीव यू शुड एक्ट क्विकली एंड प्लान अर्ली। जितनी जल्दी आप उसको प्लान करोगे डॉक्यूमेंट रेडी करने का, यू विल गेट अ बफर टाइम टू पे द टैक्सेस एज अ प्री डिपॉजिट एंड फाइल द अपील ऑन जीएसटी पोर्टल, जीएसटी एटी पोर्टल। तो आपको पता है जीएसटी पोर्टल जब लॉन्च हुआ था उसमें कितने टेक्निकल फ्लॉज हुए थे, टेक्निकल ग्लिच थे। वैसे ही वी आर एक्सपेक्टिंग जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल का जो वेबसाइट है उसके ऊपर जब हम ऑनलाइन अपील फाइल करेंगे उसमें फ्लॉज आने ही हैं, ग्लिच आने वाले हैं। सो यू शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। आप सफिशिएंट टाइम पहले ही डॉक्यूमेंट रेडी कर दो एंड यू फाइल द अपील इन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल। सो दिस वाज स्टेप 2। Coming to step 3, compute pre-GST. So this is a very important point कि how you should calculate the pre-deposit amount. First, एज वी डिस्कस्ड, आपका जो एडमिटेड अमाउंट है उसका 100% पे करना है आपको, और आपका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% आपको पे करना है। सो यू शुड केयरफुली कंप्यूट द प्री डिपॉजिट अमाउंट। अगर प्री डिपॉजिट अमाउंट कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई ना तो आप अपील फाइल कर दोगे बट फिर भी वो अपील डिसमिस हो जाएगी बिकॉज यू हैव रॉन्गली कैलकुलेट द प्री डिपॉजिट अमाउंट, और आप ने कम प्री डिपॉजिट पे किया है। सो वंस द प्री डिपॉजिट अमाउंट इज कैलकुलेटेड, then pay the pre-deposit amount on GST portal. Please note that it has to be paid on GST portal and not GST appellate tribunal portal. तो आप जो नॉर्मली टैक्स लाइबिलिटी पे करते हो जीएसटी पोर्टल पे, वैसे ही आपको चालान बना के करेक्टली पे करना है। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट टैक्स पीरियड एंड द हेड ऑफ द टैक्स, वो पे कर दीजिए। वंस द पेमेंट इज डन, काइंडली मेंटेन द प्रूफ ऑफ इट। वो चालान डाउनलोड करके रख दीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस। देन कम्स द स्टेप नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। नॉर्मली हमने सबने सुना है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के लिए वो बहुत एप्लीकेबल होता है बिकॉज व्हेन यू फाइल एन अपील इन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज रिफर्ड बाय जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफिसर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सबसे पहले वो रिफर करते हैं कि आपने क्या मेंशन किया है। सो यू शुड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स अबाउट द टैक्स पेयर, व्हाट बिजनेस द टैक्स पेयर इज डूइंग, उसका बिजनेस ऑपरेशन का स्ट्रक्चर। फिर आप वो बताइए कि कौन सा ट्रांजैक्शन है जो डिस्प्यूट में है और उसके रेलिवेंट टाइमलाइन बता दीजिए। ये पहले प्रोवाइड कीजिए। फिर आप क्रोनोलॉजी इवेंट्स बताइए कि सबसे पहले हमें ASMT 10 आया था, इंक्वायरी आई थी ASMT 10, हमने उसका रिप्लाई किया। फिर देन वी रिसीव DRC 01A, वी रिप्लाई टू दैट। देन फिर वी then we received DRC 01 show cause notice and we replied to it. Finally, we received a negative order. So you need to mention the chronological event order by date order. आपको डेट वाइज उसको मेंशन करना है और प्रॉपरली उसको प्रोवाइड करना है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कम्स द ग्राउंड्स ऑफ अपील। सो
अपील फाइलिंग के लिए है ना, द ग्राउंड्स ऑफ अपील इज द हार्ट ऑफ फाइलिंग एन अपील। क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं है ना, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आपको कितना भी अच्छे से प्रिपेयर करो, आप अपील फाइल करो, आप पर्सनल हियरिंग में क्या भी बोल दो, बट यू विल एंड अप गेटिंग द रिजल्ट अगेंस्ट यू। सो ग्राउंड्स ऑफ अपील इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो what should be kept in mind? First, the legal interpretation, चैलेंज इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। सो हमने जो पहले अभी देखा था कि स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, हमें डिटरमाइन करनी है कि हमें किस पे लड़ना है। सो फर्स्ट यू शुड एनालाइज द लीगल इंटरप्रिटेशन जो गवर्नमेंट ने किया है, उसको चैलेंज करो अगर कुछ गलत है तो। यू शुड प्रोवाइड द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड डिपार्टमेंट सर्कुलर्स इन रिस्पॉन्स टू योर रिप्लाई इन ग्राउंड्स ऑफ अपील। सेकेंड कम्स द प्रोसीजरल एरर्स, कि अगर कोई प्रोसीजरल एरर्स हुआ है, जैसे आपको पीएच नहीं दिया फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी ने, then you can point out that it is a violation of national justice as per constitution article 226। तो आप वो पॉइंट आउट कर सकते हो। लास्टली कम्स द टैक्स कंप्यूटेशन एंड जनरल एविडेंसेस, कि भाई जो टैक्स कैलकुलेशन की है, आपने ये बहुत देखा होगा कि नोटिस आपका इशू हुआ है, बट जो नंबर्स हैं उसके अंदर वो आपके नहीं है। तो डिपार्टमेंट भी क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है। बहुत ऑफिसर्स करता है, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट फ्यू डज। तो वहां पर क्या होता है, जो नंबर्स आते हैं, इट दैट नंबर्स आर नॉट रेलेवेंट टू यू, और इट वाज नॉट योर्स नंबर। तो यू चेक द नंबर्स, उनका कैलकुलेशन चेक करो जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं, वेदर दे हैव कैलकुलेटेड करेक्ट पेनल्टी अंडर करेक्ट सेक्शन एंड द करेक्ट इंटरेस्ट इज लिमिट। तो आप वो पूरा चेक कीजिए, एनालाइज इट, इफ देयर इज एनी इशू इन इट, काइंडली मेंशन इट इन योर ग्राउंड्स ऑफ अपील एज वेल। स्टेप सिक्स, कमिंग टू फाइलिंग फॉर्म जीएसटी एपीएल 05। तो अभी तक हमने क्या किया, वी एनालाइज द ऑर्डर, फिर एनालाइज करके वी हैव प्रिपेयर मेक द प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना के हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील बना दिया। एंड नाउ फिर उसके बाद हमने प्री डिपॉजिट पे कर दिया, कैलकुलेट करके पे कर दिया। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइलिंग जीएसटी एपीएल 05 ऑनलाइन। तो दिस इज द फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड ऑन gst at.gov.in वेबसाइट। इसमें आपको ईच एंड एवरी जो मैंडेटरी फील्ड है वो फिल करना है और करेक्टली फिल करना है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दिया ना, योर अपील विल बी डिसमिस, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो बी वेरी कॉन्शियस वाइल फिलिंग जीएसटी एपीएल 05। डोंट जस्ट फिल एज इट इज कि भाई ठीक है कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में अगर कोई एरर होता भी है ना, दे लेट गो इट एंड दे एक्सेप्ट योर अपील। बट जीएसटी अपेलेट अथॉरिटी में उनको इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये एरर्स भी देखें और आपको कम्युनिकेट करें। तो अगर एरर्स है, दे विल रिजेक्ट योर अपील स्ट्रेट अवे एंड यू विल एंड अप पेइंग द टैक्सेस अननेसेसरीली। तो पहले फॉर्म बनाना है, फिर अपील एपीएल 05 का फॉर्म आपने बना दिया, आपने ऑनलाइन उसको फिल कर दिया। अटैच ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑन द पोर्टल इटसेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, ऑर्डर कॉपी, प्री डिपॉजिट प्रूफ एंड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो आप वो सारा अटैच कीजिए। देर इज अ लिमिट प्रिस्क्राइब, 5 MB का डॉक्यूमेंट साइज होना चाहिए। देर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन विच इट कैन बी अटैच, तो आप वो एक बार देखिएगा। Third comes the online submission. Once the form is ready, you have attached all the document, then you should submit the form online on GST portal. So GST AT portal, sorry. So once the form is submitted on the portal, a provisional acknowledgement will be generated in GST APL 02A. सो वो आपको डाउनलोड करके रखना है। इट विल हैव अ ARN प्रूफ ऑन इट दैट यू हैव फाइल्ड एन अपील ऑन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑन सो एंड सो डेट। सो वो आपको प्रिजर्व करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग एन अपील इन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले कॉपी ऑफ ऑर्डर चाहिए। तो ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अपेलेट अथॉरिटीज ऑर्डर चाहिए। अब ऑथेंटिकेटेड कॉपी क्या होता है? नॉर्मल जो ऑर्डर कॉपी है उसको आप सेल्फ सर्टिफाइड कीजिए, सो इट विल बी कॉल्ड एज ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ एपेलेट अथॉरिटीज ऑर्डर। तो एक सेल्फ सर्टिफाइड ऑर्डर चाहिए आपको। सेकेंड, यू नीड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, आपने ड्राफ्ट किया होगा, जिसमें फैक्चुअल बैकग्राउंड दिया होगा और क्रोनोलॉजिकल इवेंट दिया होगा डेट वाइज। थर्ड, आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील प्रिपेयर किया होगा बेस्ड ऑन द ऑर्डर कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एंड आपने उसमें लीगल एंड फैक्चुअल ग्राउंड सब मेंशन किए होंगे चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी। देन कम्स द प्री डिपॉजिट प्रूफ, जो आपने प्री डिपॉजिट पे कर दिया है कैलकुलेट करके करेक्टली, उसका चालान आपको डाउनलोड करना है एंड यू नीड टू सबमिट दैट चालान while filing an appeal. Lastly comes your supporting documents.
अभी आपके जो केस है उसमें देर कैन बी एन इश्यू ऑफ ई फाइलिंग, ई वे बिल, देर कैन बी एन इश्यू ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो आपको ई वे बिल रेडी करना है, ई इनवॉइस रेडी रखना है, टैक्स इनवॉइसेस रखने हैं, सर्टिफिकेट्स रखने हैं, और एक्सेट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रेलिवेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू कीप इट रेडी बिफोर फाइलिंग एन अपील इन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। आई थिंक यू आर गेटिंग इट राइट। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिक्वायरमेंट। सो एज आई सेड, हमें जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी ने जो फर्स्ट अपील ने ऑर्डर पास किया था, उसका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी हमें चाहिए रहेगा टू बी सबमिटेड इन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफलाइन। तो कितने लोग, आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना, तो बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है दैट यू डोंट नीड टू सबमिट एनी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट टू द ट्राइब्यूनल, बट इट इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट। एज पर सेक्शन एंड रूल्स गवर्निंग जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां पर क्लियरली बोला है दैट यू नीड टू सबमिट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर, सेल्फ सर्टिफाइड करके विद इन 7 डेज अपलोड वहां पर सबमिट करना है। तो यहाँ पर ऑर्डर सबमिट करने के लिए कहा है, बट सिंस वी आर सबमिटिंग इट ऑफलाइन, आई वुड रिकमेंड आप पूरा अपील डॉक्यूमेंट ही ऑफलाइन सबमिट कर दो, सो दे विल बी हैविंग अ डॉक्यूमेंट रेडी इन हैंड, और उनको वो प्रिंट आउट लेना और वो सब कुछ मिस नहीं करेंगे, बिकॉज आप पूरा बंच प्रिंट आउट करके वहां पर दे दे देंगे। एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है और कैसे आएगा? फर्स्ट, जैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया पोर्टल के ऊपर, तो आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा इन फॉर्म APL02A, पार्ट ए। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट अपील फाइल करते थे एपेलेट अथॉरिटी के अंदर, उसमें जब हम अपील सबमिट करते थे तो फॉर्म APL02 जनरेट होता था। यहाँ पर APL02A जनरेट होगा, और एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट विल कम इन पार्ट ए। सो वंस दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड, यू विल गेट अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। जैसे प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आ गया, आपने विद इन 7 डेज सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सबमिट कर दिया फिजिकली, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको वेरीफाई करेगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को और ये सब वेरीफाई करेगा। एंड इफ दे फाउंड दैट डॉक्यूमेंट्स और जो आपने APL05 ऑनलाइन फिल किया है वो सब ऑर्डर में है, और आप तो फिर वो उसको आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा, दैट टू विल कम अंदर APL02A। ओके, बट डिफरेंस ये है, यहाँ पर पार्ट बी जनरेट हो जाएगा। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट में पार्ट ए आया था, यहाँ पर पार्ट बी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस वर्क फॉर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। कमिश्नर अपील्स फर्स्ट वाले में बहुत क्लियर था कि 02 जनरेट हो गया, योर अपील इज एडमिटेड। बट यहाँ पर जब तक आपका APL02A पार्ट बी जनरेट नहीं होता है, इट डजेंट मीन, इट मीन्स दैट योर अपील इज नॉट येट एडमिटेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो पार्ट बी आना कंपलसरी है फॉर एडमिटिंग द अपील। अपील फी स्ट्रक्चर, आपने कमिश्नर अपील में तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने अपील फाइल किया होगा, क्या आपने कोई कोर्ट फी पे किया था? आई गेस नॉट, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं था। बट व्हेन इट कम्स टू जीएसटी appellate ट्रिब्यूनल, there is a cap of fee which needs to be paid while filing an appeal in GST appellate tribunal। तो जब भी आप ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर रहे हो, दे हैव केप्ट अ कैप ऑफ ₹1,000 फॉर एवरी 1 लाख ऑफ रुपीज ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपका 1 CR का डिमांड है, तो 1 CR के ऊपर आप 10,000 रुपीज पे करेंगे, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 1,000 पे करना है, तो 1 CR के ऊपर 10,000 अमाउंट आ जाएगा। यू विल बी पेइंग 10,000 रुपीज एज अ अपील फाइलिंग फी टू द जीएसटी ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा डिमांड 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ का डिमांड है, तो उसके हिसाब से फिर मेरा कोर्ट फी आ जाएगा 50,000 रुपीज, तो 50,000 पे करना है या नहीं करना है? सो दे हैव केप्ट अ मैक्सिमम कैप ऑफ ₹25,000, कि अगर आपका अपील फी 25,000 क्रॉस कर जाता है, तो यू शुड पे 25,000 रुपीज ओनली, यू डोंट हैव टू पे 1,000 पर 1 लाख रुपीज of the disputed amount. So maximum cap is rupees 1,000, 25,000 rupees. This is the court fee structure. अब the question comes, what if the appeal is filed in the tribunal for non-demand cases? अब non-demand cases क्या होते हैं कि ड्यू टू सम रीजन डिपार्टमेंट हैज कैंसल योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वहां पर कोई टैक्स डिमांड या टैक्स डिस्प्यूट नहीं है। तो वहां पर डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियरली बोला है कि इन दिस पर्टिकुलर केस यू शुड पे अ फ्लैट फी ऑफ ₹5,000 एज अ अपील फाइलिंग फी इन ट्राइब्यूनल। ओके।
नेक्स्ट वी विल मूव टू क्रॉस ऑब्जेक्शन। हमने लास्ट पहले की स्लाइड में उसको स्किप किया था। APL 06। सो व्हाट इज क्रॉस ऑब्जेक्शन एंड हु कैन फाइल इट? सो क्रॉस ऑब्जेक्शन इज अ facility given to the respondent. For example, let me take one example. I am a registered taxpayer. अभी सर्वर आलम खान ने अपील फाइल किया डिपार्टमेंट में इन ट्राइब्यूनल फॉर रुपीज से 1 करोड़ रुपीज की भाई आई एम एग्रीव बाय दैट ऑर्डर, और 1 करोड़ रुपीज जो डिमांड है वो डिमांड नहीं होना चाहिए। आई शुड बी गेटिंग द रिलीफ फ्रॉम द ट्राइब्यूनल। तो मैंने अपील फाइल कर दिया ट्राइब्यूनल में। सो मेरा अपील जैसे एडमिट हुआ, फॉर्म APL 02A पार्ट बी जनरेट हो गया, फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ गया। उसके बाद व्हाट ट्राइब्यूनल विल डू इज दे विल सेंड अ लेटर टू द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन हो गया अपने केस में? डिपार्टमेंट। सो उनको एक लेटर जाएगा आस्किंग दैट डू यू वांट टू फाइल एनी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, कि आपको इसके अगेंस्ट में कुछ फाइल करना है तो फाइल कर दो। एंड इट हैज अ टाइम लिमिट ऑफ 45 डेज। तो 45 डेज के अंदर उसको करना रहता है। सो द रिस्पोंडेंट विल बी फाइलिंग द क्रॉस ऑब्जेक्शन। Secondly, what is the filing procedure? It is given in form GST APL 06। So either taxpayer या department जो भी cross objection file कर रहा है, he should file it in form APL 06 within the prescribed time limit, that is 45 days. नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जो मेरा ऑर्डर था ना फर्स्ट अपील से, उसमें मुझे जो मेरा जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर था, उसने 1 CR का डिमांड निकाला था। एंड आई फाइल्ड एन अपील इन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, कमिश्नर अपील्स में मैंने अपील फाइल कर दिया। कमिश्नर अपील ने मुझे उसमें से 30 लाख रुपीज का रिलीफ दे दिया और 70 लाख रुपीज का डिमांड रखा। मतलब आई गॉट द रिलीफ फॉर 30 लाख रुपीज एंड द डिमांड वॉज 70 लाख रुपीज। तो यहाँ पर मेरा डिमांड कम हो गया। तो यहाँ पर कैसा है, अगर आप अभी अपील फाइल कर रहे हो फॉर 70 लाख रुपीज, तो यहाँ पर व्हेन द रिस्पोंडेंट विल रिस्पॉन्ड इन क्रॉस ऑब्जेक्शन इन APL 06, ही कैन ओपन रीओपन द केस ऑफ दैट 30 लाख रुपीज। मतलब वहां पर जो आपके फेवर में ऑर्डर पास हो गया है ना, तो क्रॉस ऑब्जेक्शन में ही कैन ओपन दैट मैटर एंड GST अपेलेट ट्रिब्यूनल विल अलाउ इट। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार वो मैटर तो सेटल हो गया था फर्स्ट अपील में, देन व्हाई आर यू रीओपनिंग इट? तो यू कैन नॉट से दैट इन GST अपेलेट ट्रिब्यूनल। सो एज अ टैक्स प्रोफेशनल, इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू, आप ये चेक कीजिए कि आपका जो डिमांड ड्रॉप हो गया था, क्या वो सब्सटेंशियल अमाउंट का था? एंड आप जो अपील फाइल कर रहे हो वो नॉमिनल अमाउंट का है? और जो आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ड्रॉप हुआ था, क्या वो ग्रे एरिया है कि उसमें टैक्स लग भी सकता है, नहीं भी आ सकता है? सो यू शुड टेक अ कॉशियस कॉल, यू शुड डिटरमाइन द स्ट्रैटेजी कि भाई अपील फाइल करना भी है या नहीं करना है। बिकॉज एक बार आपने अपील फाइल कर दिया, then the department can open the case of that substantial amount which is dropped by the first appeal through cross objection in form APL 06। So this was a very important point. कमिंग टू डिपार्टमेंटल अपील, अभी तक हम ये देख रहे थे कि एज अ टैक्स पेयर हम हमारे अगेंस्ट नेगेटिव ऑर्डर पास हुआ है तो हम अपील फाइल करेंगे। बट देर मे बी केसेस जहां पर वी गॉट अ फेवरेबल ऑर्डर, हमारे फेवर में आया, बट स्टिल डिपार्टमेंट वांट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट अस बिकॉज दे हैव अ रीजन टू बिलीव कि जो ऑर्डर पास हुआ है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही नहीं किया है। सो इट इज प्योरली अ कमिश्नर डिसीजन। तो कमिश्नर कौन? कमिश्नर तो बहुत सारे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर। सो इट इज द प्रिंसिपल कमिश्नर्स डिसीजन whether he want to file a cross appeal, he want to go in tribunal or not। अगर कमिश्नर ये डिसाइड करता है कि इसके अगेंस्ट अपील में जाना है, देन ही विल डायरेक्ट सम पर्सन टू फाइल एन अपील ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एंड दिस अपील विल बी फाइल इन GST अपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये अपील जो फाइल होगा, द ऑथराइज ऑफिसर विल फाइल द अपील इन द प्रॉपर फॉर्म विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। SBC अपील फाइल करने के लिए उसके पास फॉर्म है GST APL 07। तो वो APL 07 में फाइल करेगा विथ ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल द एविडेंस। यहाँ पर ही डजेंट हैव टू पे द कोर्ट फी। जो हम लोग 1 लाख रुपीज पे 1,000 रुपीज पे कर रहे थे, ही डजेंट हैव टू पे एनी ऑफ दैट फीस while filing an appeal in department in appellate tribunal।
Now we'll see what is the structure of GST Appellate Tribunal. So सबसे पहले comes the principal bench, which is located in New Delhi. So it serves as an apex bench for nationwide GST dispute. Second comes the state benches. हर एक स्टेट में बेंच को सेटअप कर रहे हैं अभी, प्रोसीजर स्टार्ट किया ही है, चल रहा है, एंड इट इज सेटिंग अप इन ईच एंड एवरी स्टेट. It is done to provide a reasonable access to the taxpayer and provide a and reduce the travel burden to the taxpayer. So state benches are there. What will be the member composition? There will be two judicial members who are legally qualified and two technical members who are having expertise of GST. So there will be a quad member bench in principal bench. State may have two member bench. Next, coming to powers of GST Appellate Tribunal to pass an order. GST Appellate Tribunal के पास क्या पावर्स है ऑर्डर पास करने के लिए? फर्स्ट, इट कैन कंफर्म द ऑर्डर. जो प्रीवियस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है, इफ ही गोज टू द डॉक्यूमेंटेशन, आपने जो अपील सबमिशन किया है आपका हियरिंग लेने के बाद, इफ ही इज ऑफ द व्यू दैट जो ऑर्डर पास हुआ है वो करेक्ट है, इट कैन कंफर्म द ऑर्डर एंड अपहोल्ड द ऑर्डर विच इज पास बाय द appellate अथॉरिटी. सेकेंड कम्स द टाइप ऑफ मॉडिफाई ऑर्डर. सो मॉडिफाई ऑर्डर में क्या होता है, आपके अगेंस्ट ही रहेगा, डिमांड आपके अगेंस्ट रहेगा, बट कुछ अपेरेंट एरर्स है या कुछ एरर्स है ऑर्डर के अंदर, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं. सो दैट इज मॉडिफाई ऑर्डर. थर्ड इज एनुअल ऑर्डर. सो अगर कुछ ऑर्डर पास किया है अथॉरिटी ने, एपेलेट अथॉरिटी ने, फर्स्ट अपील ने, बट उसके अंदर वो ऑर्डर उसने करेक्टली पास नहीं किया है, ऑर्डर इज नॉट प्रॉपर, एंड आपने जो अपील फाइल किया, गोइंग रिफरिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, हियरिंग द पर्सनल हियरिंग स्टेटमेंट ऑफ योर्स एंड द डिपार्टमेंट पर्सन, इफ ही इज ऑफ द व्यू दैट कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो गलत है, then it will pass an annual order and it will set aside the order which is passed earlier by earlier authority. Last comes the remand of matter. अभी कितने केसेस अपेलेट अथॉरिटी में और अपेलेट ट्राइब्यूनल में ऐसे केसेस जाते हैं जहां पर टैक्स पेयर ये बोलता है कि भाई मैंने रिप्लाई किया था, बट ऑफिसर ने वो रिप्लाई को कंसिडर ही नहीं किया, उसको रिफर ही नहीं किया, ही जस्ट ब्लाइंड फोर्टलेटली पास द ऑर्डर. तो ये पर्टिकुलर केस में, या फिर कुछ केसेस ऐसे जाते हैं कि आईटीसी डिसअलाउ कर दिया बट ही हैज नॉट चेक द नेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विच वॉज यूज वाइल फाइलिंग द GST 3B रिटर्न. तो ये पर्टिकुलर केस में ट्राइब्यूनल डजेंट हैव दैट मच टाइम कि वो आपका एक एक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करे. So it can remand the order to your lower authority, that is your jurisdictional officer, जो फर्स्ट पर्सन है आपका, जो आपको फर्स्ट नोटिस इशू करता है, उसको वो रिमांड बैक कर सकता है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कंसिडरेशन, एंड वो उसको बोल सकता है बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन यू शुड पास द ऑर्डर. सो दिस वाज द पावर्स ऑफ GST Appellate Tribunal to pass an order. Now we will see what is the hearing procedure. फर्स्ट कम्स द नोटिस इशुएंस. जैसे आपने अपील फाइल किया, अपील एडमिट हुआ, आफ्टर दैट द ट्राइब्यूनल विल इशू नोटिस टू बोथ द पार्टीज, अपेलेंट एज वेल एज द रिस्पोंडेंट, मतलब आपको और डिपार्टमेंट को, दोनों को नोटिस इशू करेगा ऑफ हियरिंग नोटिस विद प्रॉपर डेट एंड टाइम एंड द वेन्यू in which the case will be discussed. So first thing is issuance of notice. Second comes pre-hearing preparation. तो आपको जैसे नोटिस आ जाता है या आपको नोटिस आने से पहले, यू शुड प्रिपेयर वेल इन एडवांस द रिटन सबमिशंस, द रिटन नोट्स विच यू विल गोइंग टू टेल इन द पर्सनल हियरिंग. आपको पहले से वो प्रिपेयर करके रखना है, बिकॉज हियरिंग में आपको हार्डली 3 to 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन द एंटायर मैटर इन अ कंसाइज वे एंड अ क्लियर वे टू हिम. तो आप एक शॉर्ट नोट बना के पहले से एडवांस पे रेडी रखिए, that what you will be telling in the department, in the tribunal, at the time of personal hearing. You should also collate all the evidences on which you rely and the legal arguments which you are putting forward in grounds of appeal. वो सब आपको रेडी रखना है. प्रैक्टिकल सजेशन टू यू, यहाँ पर इतना टाइम नहीं रहता है कि आप डॉक्यूमेंट टर्न अराउंड करके देखेंगे, जो हम अपेलेट कमिश्नर अपील से अपेलेट अथॉरिटी में कर लेते हैं, हम एक एक डॉक्यूमेंट टर्न करके देख लेते हैं. यू शुड नोट डाउन ऑल द पेज नंबर्स ऑन विच अ रेलिवेंट थिंग इज मेंशन बाय यू, कि भाई तुम कोई पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा पैरा में है, कौन सा पेज नंबर पे है, वो आपको मेंशन करना है आपके
note के अंदर, so that you will not take much time. You will go through in the personal hearing very confidently and you can present your case over there. नेक्स्ट कम्स द ओरल आर्ग्यूमेंट. सो जैसे आपका पर्सनल हियरिंग नोटिस आ जाता है, पर्सनल हियरिंग डेट के ऊपर, यू एंड द डिपार्टमेंटल ऑफिसर विल बी प्रेजेंट इन द हियरिंग. You and the officer will present the argument. You can counter the argument, and the tribunal will listen to both of you before deciding the case. So this comes the oral arguments. नेक्स्ट कम्स द एविडेंस एग्जामिनेशन. तो आपका हियरिंग हो गया ट्राइब्यूनल में, उसके बाद वो आपका जो सबमिशन आपने किया था अपील फाइलिंग के टाइम पे, वो सबमिशंस देखेगा. आपके ओरल सबमिशंस जो आपने किए हैं वो रेफर करेगा. आपके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स जो आपने इन सपोर्ट ऑफ द अपील डॉक्यूमेंट अटैच किए थे, फॉर एग्जांपल इन्वॉइसेस अटैच किए थे, ई वे बिल, ई इन्वॉइसेस, सीए सर्टिफिकेट्स, एग्रीमेंट्स जो आपने अटैच किए थे, इट विल स्टडी ऑल द एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन in detail, and finally it will issue a final order after examine all the documentation and all the hearing points. Then comes the authorized representative. कौन represent कर सकता है appellate tribunal में? First comes the chartered accountants. Chartered accountants can represent the assessee, taxpayer. Then comes the advocate. Then comes the cost accountant, and finally company secretary. So this people can represent a taxpayer and the department. Please ensure that if someone is appointing you as a authorized representative, they should mention your name, your firm details, everything in while filling form APL 05. आपको याद होगा जब टैक्स ऑडिट हम करते हैं तो टैक्स ऑडिट में क्लाइंट आपकी टैक्स ऑडिटर का डिटेल्स वहां पर देता है. तो फॉर्म APL 05 में देयर शुड बी मेंशन अबाउट योर नेम, योर फर्म मेंबरशिप नंबर, सब डिटेल्स वहां पर मेंशन होना चाहिए while filing an online application in tribunal. And the concerned person जो भी है, CA है, CS है, cost accountant और an advocate है, they should possess a valid certificate before appearing ट्राइब्यूनल के सामने जाने से पहले उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे CA सर्टिफिकेट हो गया. सो वी शुड पोजेस दैट, डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते. Written submission in GST litigation. This slide I have added here again because it has some reasoning. I need to harp on the legal written submission because if you provide a written submission very clear, very crisp, then you will win half of the case. Written submissions are very crucial when it comes to complex GST matter. जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है तो आपका रिटन सबमिशन है जो बोलता है. आपको पर्सनल हियरिंग में हार्डली 3 से 5 मिनट मिलेगा, आप क्या एक्सप्लेन करोगे वहां पर. बट इफ यू स्ट्रक्चर्ड योर रिप्लाई वेरी क्लियरली, हाईलाइट रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस, और आप अपने आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करोगे विद एविडेंटली सबमिशन, then the tribunal will understand that this position is correct and the chances of getting a favorable order in your side increases. So that's the reason I added this slide over here, written submission and GST litigation. नाउ कम्स द रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर. अब हमने अपील फाइल किया था ट्राइब्यूनल में, हियरिंग हुआ, सबमिशन हुआ, फाइनल ऑर्डर आ गया, सब कुछ हो गया. बट देन द ट्राइब्यूनल आइडेंटिफाइड कि ऑर्डर में है ना कोई एरर है. तो ट्राइब्यूनल हैज द ऑथोरिटी, इट कैन रेक्टिफाई द एरर अंडर सेक्शन 154 विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. Here, the important point is that error must be genuine mistake, apparent from the record and not required any detailed examination or additional evidences. मतलब बहुत क्लियर है कि भाई ये 2+2 4 होना चाहिए था बट वो कुछ और हो गया, या फिर कुछ टोटलिंग में कुछ गलत हो गया, या कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करना है या एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वापस से फाइल रेफर नहीं करनी है. अगर ऐसा कोई एरर है, tribunal can rectify that order. You can also make an rectification application if tribunal has not identified it. Then comes appeals to high court. अगर आपका ऑर्डर नेगेटिव आ गया ट्राइब्यूनल से, then you have an option to go to high court under section 117. Here the important thing is, अगर आपका मैटर इज ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर है, तो हाई कोर्ट विल नॉट एंटरटेन योर अपील. सो GST appellate tribunal was the last resort available to you. But if your matter is relating to question of law,
इंटरप्रिटेशन इशू है, सेक्शन का लीगैलिटी वैलिडिटी इशू है, देन डेफिनेटली हाई कोर्ट विल एक्सेप्ट योर केस एंड इट इज परमिटेड इन हाई कोर्ट by filing a writ petition in high court. If the high court rejected, then you have an option to go in supreme court by filing special leave petition. Now we'll come on the other part कि what should be the litigation strategy for a tax professional. क्या strategy follow करना चाहिए tax professional को? First, they should focus on legal issues कि भाई clearly identify करो कि कोई जो order पास हुआ है उसमें कोई question of law है क्या, कोई factual dispute है क्या, वो सबसे पहले identify करो. Is there any interpretation issue of GST Act and rules? First identify that. Second, गो फॉर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब आपने जो आइडेंटिफाई कर लिया है, आप उसके पॉइंट 4 ग्राउंड्स ऑफ अपील में पुट अप कर रहे हो. कीप अ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम, इनवॉइसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग्स, CA सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट, एक्सेट्रा. You can provide it in a strong documentary evidence. Then comes the strategy that once the drafting is done, you should use the precedents of earlier cases which are similar to you, squarely fall under your case, and आप उसको रेफर कर सकते हो. ये आई हैव वन एडवाइस फॉर यू. अब प्रेसिडेंट कैसे यूज करना है? सबसे पहले गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर वो आपके फेवर में है, सेम केस है, फर्स्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. इफ इट इज नॉट अवेलेबल, देन गो फॉर हाई कोर्ट जजमेंट इन विच स्टेट यू आर रजिस्टर्ड. अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट का देखो. अगर आप दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हो, आप दूसरे स्टेट का देखो. अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ अदर स्टेट. ओके. अगर हाई कोर्ट का भी जजमेंट अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन गो फॉर ट्राइब्यूनल जजमेंट एंड यू कैन साइट दैट रेलिवेंट citation in your grounds of appeal. What common mistakes are done by a taxpayer? टैक्सपेयर क्या करता है? सबसे पहले तो वो सोते रहता है, अपील फाइल करना रहता है, नोटिस आ गया, वो आपको बताएगा ही नहीं कि भाई ऐसा कोई नोटिस आया था, ऑर्डर आया था. और ऑर्डर आने के बाद जब डिमांड रिकवरी होता है ना, डिपार्टमेंट रिकवरी के लिए जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, तब वो उठ के आपके पास आता है कि सर ये तो ऑर्डर आ गया, अभी मेरा बैंक अकाउंट अटैच हो गया है या मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, ITC रजिस्टर को ब्लॉक कर दिया है. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच इज मेड बाय अ टैक्स पेयर कि जो टाइम लिमिट है अपील फाइलिंग की, वो मिस कर जाते हैं, वो देखते नहीं है, प्रोसीजर डिफीट हो जाता है यहाँ पर. सेकेंड कम्स दी इनकरेक्ट प्री डिपॉजिट. कितने टैक्स पेयर ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को काफी स्मार्ट समझता है कि भाई मैं क्यों पे करूँ प्रोफेशनल को फी, आई कैन कैलकुलेट इट, आई कैन ड्राफ्ट. अभी तो AI का जमाना है, सब कर सकता है, राइट? तो वहां पर वो प्री डिपॉजिट, ये सब पैसा बचाने के चक्कर में दे एंड अप कैलकुलेटिंग रॉन्ग प्री डिपॉजिट. अभी 100 रुपये प्री डिपॉजिट आना चाहिए था, बट दे हैव पेड सपोज 99 रुपीज उन्होंने पे कर दिया. 1 रुपये कम पे किया ना, उसके वजह से उनका अपील रिजेक्ट हो जाएगा. So pre-deposit calculation is very important. You should educate your clients that भाई थोड़ा पैसा बचाने में मत जा, कुछ गलत हो गया ना तेरा अपील यहाँ पर रह जाएगा. थर्ड कम्स दी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन. सो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, अपील प्रिपेयर कर लिया, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिया, ग्राउंड्स ऑफ द अपील बना दिया, और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही अटैच नहीं किया, या रेलिवेंट जजमेंट अटैच नहीं किए, या कोई उसके रेलिवेंट सर्कुलर्स नोटिफिकेशन है वो अटैच नहीं किए. सो इट इज अ कॉमन मिस्टेक विच इज डन बाय अ टैक्स पेयर. Now, as a professionals, what practical checklist we should be keeping in mind before filing an appeal, before taking up the case? First, we will check very first we will check the limitation period कि भाई 3 महीना हो गया है क्या अपील ऑर्डर की डेट से. अगर हो गया है तो वो टाइम बार हुआ है या नहीं हुआ है. Secondly, we will check whether correct pre-deposit is calculated and paid. Thirdly, we will draft a strong grounds of appeal which should be clear, concise, and up to the point, and it should present your actual facts of the case. Then comes the case maintain file. Abhi, we once we have filed a appeal now, we should create a file in which all the documents, all starting from issuance of first intimation in ASMT 10 to the getting of order, negative order from appellate authority. तो आप पूरा डेट वाइज सीक्वेंस वाइज उसको केस फाइल अरेंज करके रखिए.
कौन से रिप्लाई के अगेंस्ट, नोटिस के अगेंस्ट आपने क्या रिप्लाई किया है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अटैच करके रखिए. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. सम चेकलिस्ट टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर फाइलिंग एन अपील. फर्स्ट आप ऑर्डर को रिव्यू करो, एंटायर ऑर्डर आप पढ़ो, उसका फाइंडिंग देखो, उसका रीजनिंग देखो एंड कंक्लूजन पढ़ो कि ऑर्डर में क्या है. उसके बाद आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोलेट करो. डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, देन यू शुड प्रिपेयर अ लीगल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. So this checklist should be kept in mind before filing an appeal. Then comes the checklist, which should be considered after filing of an appeal in tribunal. After filing भी कुछ करना है? Yes, definitely करना है. बिकॉज आपने तो अपील फाइल कर दिया, अब आपको पर्सनल हियरिंग आ गया, आपने देखा ही नहीं, भाई टाइम चला गया, तो जो मेहनत किया वो वेस्ट हो गया. सो फर्स्ट थिंग, मॉनिटर लिस्टिंग डेट्स, जो हियरिंग डेट्स है उसको रेगुलरली मॉनिटर करो. जीएसटी पोर्टल पे करो, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल पोर्टल पे करो, वहां पर चेक करते रहो. सेकेंड, हियरिंग नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखो. जैसे मैंने आपको बताया था, आपको हियरिंग में हार्डली 2 to 3 मिनट्स, 5 मिनट्स मिलता है. उसमें अगर आप पेज घुमाओगे, दैट ऑफिसर जो बेंच पे बैठा है ऑफिसर, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ही विल नॉट लिसन टू योर केस. तो आप प्रॉपरली उसको पहले ही वेल डिफाइंड छोटा सा कंसाइज नोट्स बना के रखिए. थर्ड, kindly keep on monitoring the notices. It can be received through postal, it can be received through emails, it can be received on जीएसटी पोर्टल. तो तीनों वे से आपको चेक करना है. अब कितनी बार क्या होता है कि आपने जब अपील फाइल किया, आप एक्स लोकेशन पे हो, एंड आफ्टर फाइलिंग इन अपील यू शिफ्टेड टू अ न्यू ऑफिस ऑन वाई लोकेशन. तो आपको एक्स लोकेशन पे वहां पर किसी को बोल के रखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आता है कहीं से भी, यू शुड इन्फॉर्म मी अपफ्रंट, और बता देना. क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया ना, यू शुड नॉट, यू विल नॉट एबल टू से इन द डिपार्टमेंट कि हमें तो रिसीव ही नहीं हुआ. राइट, क्योंकि उन्होंने करेक्ट जगह पे आपको नोटिस इशू कर दिया था. Now, let me summarize what we discuss in this particular webinar. First, we saw the legal framework of GST appellate tribunal. कि उसका कौन से सेक्शन गवर्न करते हैं, what is the context of it, what is the hierarchy of GST appellate tribunal, what are the provisions governing the GST appellate tribunal, and what is the dispute litigation framework. Second comes the eligibility, that who people are eligible to file an appeal before tribunal. Second, then we discuss what is the pre-filing requirements, कि सबसे पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, क्या स्टेप करके रख लेना चाहिए बिफोर फाइलिंग एन अपील इन द ट्राइब्यूनल. वी ऑल्सो सॉ द टाइम लिमिट कि भाई 3 महीने से पहले, मतलब 3 महीना हो गया है क्या नहीं. वी सॉ द मॉनिटरी थ्रेशोल्ड लिमिट कि भाई 50,000 के नीचे है, देन यू कैन नॉट फाइल एन अपील इन ट्राइब्यूनल. Then we went on the appeal filing process. We discussed step by step appeal filing processes, right from analyzing the order in step number one to filing an appeal in form GST APL 05 in step number 5 or 6. उसके बाद हमने चेक किया, हमने स्टडी किया कि जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल का फंक्शन क्या है, हाउ इट इज फंक्शन, हाउ डज इट फंक्शन, व्हाट आर द पावर्स available to GST appellate tribunal for passing an order, and what are the hearing procedures which the tribunal adopt, and what is the role of representatives. Then finally we discuss what is the best practice uh, adopted by a professional as a chartered accountant, lawyer, CA, CS, CMA. So वो हमने देखा, and what are the common mistakes which a taxpayer do while filing an appeal in GST appellate tribunal. So this was the total summary of the 1 hour webinar which we discussed right now. Any question and answers, we are ready. We are happy to take it out. Due to time constraint, we will take around 4 to 5 questions. But before proceeding to questions, I would request you to join our WhatsApp community group. It is named with My GST Hub Community. We request you to kindly scan the given QR code for getting important updates about GST, upcoming webinar dates, exclusive newsletter, or any judicial proceedings which are coming in the market, and real-time discussion. So we can have a real-time discussion on this WhatsApp community. So we request you to kindly join the WhatsApp group. Then we will take some few questions and we will end our webinar then.
सर अभी 55 लोग हैं सर, बट सबने ज्वाइन नहीं किया है. आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन द चैनल. Please join this WhatsApp group. This is not a channel, but it's a group in which we can discuss. We can do a real-time discussion on particular matter. We will be sharing any updates on that. So please join it. मानस एक बार चेक करना. Okay, so we can take few questions and then we will wind up this webinar. Ashish sir's question is that where can I pay the pre-deposit amount? So pre-deposit needs to be paid in GST portal itself. जो नॉर्मली आप टैक्स पेमेंट करते हो ना, वैसे आपको पे करना है. इज देयर एनी मॉनेटरी लिमिट फॉर द डिपार्टमेंट टू फाइल अपील बिफोर ट्राइब्यूनल? इट इज नॉट स्टेटेड इन द लॉ. उन्होंने नहीं दिया है, बट उनका इंटरनल गाइडलाइंस है. इंटरनल दे हैव केप्ट गाइडलाइंस कि अगर ये हायर स्टेक का अमाउंट होगा तभी दे कैन फाइल एन अपील इन ट्राइब्यूनल, बट इट इज नॉट नोन टू अस. आप पता कर सकते हो. इफ यू रेगुलरली विजिट इन डिपार्टमेंट, देन यू कैन डेफिनेटली ask the officer who with whom you have a good relation. Sharing your presentation, we will share on the WhatsApp group which we have just shared it. अगर आप उस पर ज्वाइन करते हो, you will get the presentation. Ali Akbar's question is that there are two jurisdictions under GST. One is state and other is central. Are both the jurisdictions have power to pass order under 73 or 74? So basically, the main jurisdiction, आपका जो main jurisdiction है ना, they have the power to pass an order against you. But if there's any specific finding कि सपोज आपका मेन जुरिस्डिक्शन स्टेट है, बट सेंट्रल आइडेंटिफाई सम एरर्स अगेंस्ट यू, सम इश्यूज अगेंस्ट यू, दे हैव पावर टू do the GST audit and they can pass an order under section 73 or 74. So yes, both the jurisdiction can pass an order, but the matter can be but the matter should be different. एक ही मैटर के ऊपर दोनों नहीं पास कर सकते. 10% of pre-deposit is of टैक्स अमाउंट ओनली एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट और पेनल्टी. सिर्फ टैक्स अमाउंट का 10% पे करना है. इट शुड नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट और पेनल्टी. However, if the appeal is filed only for a penalty amount, then 10% of penalty will be paid as a pre-deposit amount. Thank you, user. Amazing session. Thank you. Documents will be attached should be signed by client. I would highly recommend you should self-certify the documents before uploading. वो better रहेगा. It is not required that the document should be signed while uploading on the portal, but I would recommend it. बहुत सारे लोग कुरियर को HR रिसीव न होते हैं. सर्विस ऑफ डिलीवरी इज मैटर इट मीन्स. तो सर आपको इन्फॉर्म करके रखना पड़ेगा राणा जी कि आप जो एड्रेस पे है वहां पर आपको कोई बंदे को बोल के रखना पड़ेगा कि जो कोई भी नोटिस आ रहा है, दे शुड इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस. What is the time limit for hearing? It can issue the time. It can issue within a year or so, but there is no time limit. उनके ऊपर बांध के नहीं रखा है. Issued order, Nitin's question is that issued order without application of mind. Definitely, जो हमने discuss किया that you should adopt a strategy which should be used for filing an appeal. तो आप strategy adopt करो कि भाई अगर उसने अपना माइंड ही ये अप्लाई नहीं किया है और डायरेक्ट बिना रीजनिंग के ऑर्डर पास कर दिया है, यू शुड फाइट ऑन दैट मेरिट दैट अपील इज दैट ऑर्डर इज नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर एंड द ऑर्डर इज नॉट वैलिड. यस, फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा बिकॉज अपील करोगे तो यू विल गेट अ स्टे फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड दे विल नॉट स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस.
Yes, so this was the question. Any more question? Then we will close it out. Is it mandatory to print the appeal application on legal paper or printing on A4 size letter is fine? I would highly recommend print it on legal size paper. It can be on green paper or white paper, but print on legal size paper because they are used to that size of paper. आप ट्राइब्यूनल में देखोगे ना, सर्विस टैक्स में भी they used to follow the legal size paper. तो A4 size उनको जमता ही नहीं है. तो better you go with legal size paper. So I think these are all the questions which I have responded. Thank you for attending. Thank you for your precious time. We will conclude today's webinar. Thank you.